Welcome, students. On the behalf of Oscar Public School, I welcome you all to online classes. My name is Nimisha. I am your social science teacher. I hope you all are fit and fine at your homes. So, as you guys excited for the today's class? I know you are definitely excited. So, let's start today's class. So in the last class we have already read about the chapter number 2, latitudes and longitudes. Repeat after me. What is the chapter name? Latitudes and longitudes. So as we discussed in the last class as well, earth is a spherical in shape. So students, in first of all we are just taking a quick recap of previous class, then we can start with the new topic. Okay, so in last class we have already read about the latitudes. Basically we have already started with the earth is a spherical in shape. Basically earth rotates on its imaginary fixed line called axis, and as you know that earth complete one rotation takes 23 hours 56 minutes and 4.1 seconds. And as you know that the northernmost part of the axis is called north pole, and the southernmost part of this axis is called south pole. We have already read about the parallels or latitudes. Latitudes or parallel are the set of horizontal lines that run from east to west. Have you seen this? We have already read about this. This is the latitude, and it is moving from east to west, and these are the imaginary line. Okay, this is the imaginary line, and the middle one, which is the equator. The latitude or the parallel that divide the earth into two equal half, यानी कि वो लाइन जो अर्थ को टू इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, दैट इज इक्वेटर. ओके, इट इज़ ऑल्सो द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड, यानी कि सभी लैटिट्यूड से अगर हम कंपेयर करें तो दिस वन is the longest line, and it is also known as the great circle of the earth. This is the equator line. This is the longest latitude. Uppermost is the northern hemisphere, and the downmost is the southern hemisphere. This point is called north pole, and this point is called the south pole. So we have already read about the northern hemisphere. I am just pointing the cursor here. The upper one is called the northern hemisphere, and the downmost is the southern hemisphere. We have already read about the important parallels और latitude. हम लोगों ने ये भी पढ़ा था लास्ट क्लास में कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दीज आर द इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स. ठीक है, ये सारे इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं 5. द फर्स्ट वन इज़ इक्वेटर. जैसे मैंने आपको बताया, हम इक्वेटर के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं. The second one is Tropic of Cancer. 23.5 degree north is of the equator, that is a Tropic of Cancer. And Tropic of Cancer की लाइन कहाँ से passes through हो रही है? इंडिया से भी. Okay? Tropic of Cancer, it is 23.5 degrees south. See this? I think I have just already told you. This is the equator line. Okay? And this is the Tropic of Cancer, 23.5. 5 है ना, तो 23.5 degree north. And Tropic of Capricorn, 23.5 degree south. Arctic Circle, 66.5 degree north. Antarctic Circle, 66.5 degree south. ऊपर वाला north side and downward is the south side. Okay? So these are the important latitudes. Arctic and Antarctic circle are also called polar circle. This one, I am just pointing the cursor here. These both are called the polar circle. क्यों? क्योंकि ये पोल पर हैं. This Arctic circle is on North Pole and Antarctic circle is on South Pole. ये दोनों फ्रिज जोन भी कहलाते हैं. ठीक है, फ्रिज मीन्स जमे हुए, यानी कि यहाँ पर 12 मंथ्स ही यहाँ पर स्नो कवर्ड रहता है, आइस कवर्ड रहता है. तो दीज आर कॉल्ड द पोल सर्कल एंड द फ्रिज जोन एज वेल.
We have already read about the characteristics features of parallels. So how many latitudes are there? 181. ठीक है, these are the 181 latitudes. See, these are the 181. 80 90 ऊपर है, 90 नीचे है, and 1 is the 0 degree वाला equator. So these are the 181 parallel lines. पैरेलल आर कंप्लीट सर्कल पे है, इक्वी डिस्टेंट पे है, ठीक है, और ये नेवर टचेज ईच अदर, आपस में एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करती. आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दीज आर द पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं? द लाइंस विच आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, यानी कभी भी एक दूसरे को कनेक्ट नहीं होती, कट नहीं करती, ठीक है. आप उन्हें कितने भी n नंबर ऑफ अनलिमिटेड तक उसको आगे पास ऑन करते रहिए, वो कभी भी ज्वाइन नहीं होगी, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. दीज आर द पैरेलल लाइंस. ओके, सो आई होप यू हैव ऑलरेडी डन दिस ऑल्सो. इफ यू हैव नॉट डन येट, सो कंप्लीटेड दिस. दीज आर द एग्जाम्पल. मैंने आपको ये पिक्चर बना के देखी थी. आई होप यू हैव ऑलरेडी डन दिस. दीज आर द 181 पैरेलल लाइंस. 0 फ्रॉम डिग्री, ऊपर जा रहे 90 लाइंस हैं, नीचे आ रहे 90 लाइंस हैं. NP मीन्स नॉर्थ पोल, SP मीन्स साउथ पोल. सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास. वी हैव स्टार्ट विद द मेरिडियंस और लॉन्गिट्यूड. आवर चैप्टर नेम इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. तो हमने लैटिट्यूड तो पढ़ा, जो कि लाइन लेटी हुई हैं, स्लीप कर रही हैं, स्लीपिंग लाइन जैसी. नाउ वी आर कम टू द लॉन्गिट्यूड. लॉन्ग मीन्स हम कहते हैं ना, हाउ यू लॉन्ग, आपकी लंबाई कितनी है. सो इसी से आप एक इमेजिन कर लेंगे, दिस इज द लॉन्गिट्यूड. ओके, लाइक दिस टाइप ऑफ लाइन. सी, दीज आर द लैटिट्यूड्स. ओके, इन द प्रीवियस पिक्चर आई हैव ऑल्सो शो यू दिस. सी, these are the longitude. Okay, if you have any issues, so you can just check from the phone also. अपने फ़ोन में भी चेक करके देखिएगा, so you have understand it more better, और अच्छे से समझ आएगा. These are the longitude. These meridians और longitude are the set of semi-circular imaginary lines. इसको हम semi-circular imaginary lines भी कह सकते हैं. It is run from the, जैसे हमने देखा लैटिट्यूड कैसी थी, ईस्ट टू वेस्ट आ रही थी. सेम एज दैट, सॉरी इट्स नॉट सेम एज दैट, ये लॉन्गिट्यूड कैसा आ रहा है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ. जस्ट सी दिस पॉइंटिंग इन कर्सर. दीज आर द बेटा इमेजिनरी लाइन्स. ये रियल में लाइन्स नहीं है, बार बार मैं आपको यही कह रही हूँ, ठीक है. एक्चुअल में हमारी अर्थ पर ऐसी कोई लाइन नहीं है. दीज आर द इमेजिन की हुई है हमने. दीज आर द इमेजिनरी लाइन दैट रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑल अराउंड द ग्लोब, यानी पूरे ग्लोब पर ये लाइंस हैं, ठीक है. दे आर ड्रॉन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, यानी कि नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रही है एंड साउथ पोल पे है. इन 1884 इट इज़ वाट डिसाइडेड दैट In 1884, it was decided the number meridian starting with the meridian the pass through Greenwich near London. बेटा ये लाइन जो है, जैसे हमने इक्वेटर कहा, इक्वेटर क्या कर रही थी, अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही थी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर. ऐसे ही हमने यहाँ से एक लाइन ली इक्वेटर के जैसी, जो कि अर्थ को ईस्ट साइड एंड वेस्ट साइड, ई और डब्ल्यू लिखा होगा मैंने, ये ईस्ट साइड में और वेस्ट साइड में डिवाइड कर रही है. एंड ये लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, दिस इज़ पासिंग थ्रू द ग्रीनविच. ग्रीनविच इज़ अ प्लेस नेम नियर लंडन, ठीक है, यानी कि लंदन से जो इसका 0 डिग्री है वो पास हो रहा है. इट वॉज मार्क्ड एज अ 0 डिग्री. यहाँ पर मैंने 0 डिग्री मार्क किया हुआ है, आपके बुक में नहीं है फ़िलहाल, मैंने यहाँ पे करा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा. इट वॉज मार्क्ड एज अ 0 डिग्री मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन. इस जैसे हमने इस वाली लाइन को हमने क्या कहा था, 0 डिग्री वाली को, लैटिट्यूड वाली लाइन को हमने क्या कहा था, इक्वेटर. ऐसे ही लॉन्गिट्यूड वाली 0 डिग्री को हम कहेंगे प्राइम मेरिडियन. व्हाट वी कॉल्ड प्राइम मेरिडियन. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर आस्किंग मैम व्हाट इज़ दैट प्राइम मेरिडियन. तो बेटा प्राइम मेरिडियन, जैसे
हमने लॉन्गिट्यूड वाली लाइन में 0 डिग्री वाली लाइन को क्या कहा था, इक्वेटर कहा था. सेम एज दैट जो लॉन्गिट्यूड में 0 डिग्री वाली लाइन को हम क्या कहेंगे, प्राइम मेरिडियन. एंड दिस प्राइम मेरिडियन इज पासिस थ्रू ग्रीनविच नियर लंडन. प्राइम मेरिडियन डिवाइडेड द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर. जैसे इक्वेटर ने आपको क्या किया था, 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड किया था. अपर वन इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न वन इज व्हाट, यस, साउदर्न वन इज साउदर्न हेमिस्फीयर. सो ऐसे ही प्राइम मेरिडियन वॉज डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर. द फर्स्ट वन इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द अनदर वन इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर. Now you got my point. This one is called Eastern Hemisphere and this one is called Western Hemisphere. The meridian east of prime meridian is marked as E. मैंने E वाले का मतलब Eastern Hemisphere and this one is a Western Hemisphere. बेटा in this side, अच्छा, how many latitudes are there? 181. बट अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड की. द मेरिडियन 180 डिग्री ईस्ट एंड द मेरिडियन 180 डिग्री वेस्ट इज़ वन एंड द सेम. वन एट द सेम यानी कि जैसे मैंने बताया ये लैटिट्यूड क्या थी, इसको आप कहीं पर भी मोड़ लो, ये सारी एक इक्वल डिस्टेंस पे थी, आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो रही थी. लेकिन यहाँ पर लॉन्गिट्यूड में ऐसा क्या है, ये सारी लाइंस आकर एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं. सी दिस, ये सारी लाइन क्या है, बीच में इक्वल डिस्टेंस पर है, लेकिन ऊपर आते आते यहाँ पर नॉर्थ पोल पे भी टच हो रही हैं, साउथ पोल पे भी टच हो रही हैं. ओके, सो इट इज़ द नॉन एज द इंटरनेशनल डेट लाइन. यानी कि ये कहाँ पे, ये सारी लाइंस यहाँ से टच होकर इस वाली लाइन पर टच हो रही हैं. ठीक है, इसी को कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन. व्हाट वी कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन. ये सारी लाइन, सारे लैटिट्यूड्स कहाँ आके ज्वाइन हो रहे हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन. ओके, यानी 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है ना, इसीलिए इस लाइन को इक्वेटर की जगह हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन या फिर इंटरनेशनल डेट लाइन. सी दिस, यहाँ ये ज्वाइन हो रही है, आपको इस पिक्चर में और अच्छे से पता चल जाएगा. दीज आर द ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड and this is the western longitude. okay, and listen बच्चे, मैं ये पिक्चर्स आपको जो पिक्चर्स बनानी है मैं सिर्फ वही आपके PDF में सेंड करूँगी. अदरवाइज I will remove the pictures because you are so confusing about it. okay, you are totally confused about it. so जो पिक्चर में नहीं होगा, जो आपके PDF में नहीं होगा, no need to draw this. so these lines are the longitude, eastern longitude. These lines are called the western longitude. okay, and this is the prime meridian 0 degree. जैसे हमने इक्वेटर किया था, same as that this is the prime meridian. see, this is the prime meridian 0 degree. कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ मेरिडियन. अब हम इस कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे. देयर आर 360 मेरिडियंस. हमने कितने लैटिट्यूड्स पढ़ी थी, लैटिट्यूड्स थी 181 एंड नाउ देयर आर 360 मेरिडियंस. 180 डिग्री ईस्ट प्लस 180 डिग्री वेस्ट, इट ऑल यानी कि ये सारी लैटिट्यूड्स अगर हम जोड़ें तो ये क्या है हमारी 360 मेरिडियंस. 180 degree latitude is a common line, that is 180 east and 180 west longitude are the same line. all the longitude are in same in length. इसकी सबकी लेंथ सेम है, यानी कि अगर ये अगर फॉर एग्जांपल ये 2 मीटर की है तो ये भी 2 मीटर होगी, ये भी 2 मीटर होगी, लेकिन आपस में एक पोल पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ये आकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं. लेंथ सबकी सेम है. द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 मेरिडियंस इट्स एट इक्वेटर. सबसे ज़्यादा इन्होंने में डिस्टेंस कब आता है, जब ये इक्वेटर पे होती हैं. ठीक है, यानी कि अगर हम इक्वेटर की लाइन खींचें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इनके आपस में डिस्टेंस होता है, यानी कि ऊपर जाने के बाद तो ये सेम हो जाती हैं. विच, कौन सी लाइंस, लॉन्गिट्यूड्स.
लॉन्गिट्यूड्स ऊपर जाके दोनों आपस में टच हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा इनका डिस्टेंस कहाँ पर होता है? सबसे ज़्यादा डिस्टेंस इनका इक्वेटर पे होता है। मरीडियंस कट द इक्वेटर एट द राइट एंगल 90 डिग्री। अगर हम इस पर एक लाइन क्रिस क्रॉस कर दें, सी अगर मैं यहाँ पर कट करूँ इसे लाइंस को, एक यहाँ पर लाइन डालूँ, ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, दैट इज़ राइट एंगल। आप लोग पढ़ रहे हैं ना, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? राइट एंगल इट्स अबाउट 90 डिग्री। सो मरीडियंस कट द इक्वेटर एट द राइट एंगल दैट इज़ 90 डिग्री। गॉट इट? द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मरीडियंस डिक्रीज टूवर्ड्स द पोल। ये बिल्कुल हमने पढ़ा है कि मेरिडियंस पे ऊपर जाते हुए सबका डिस्टेंस क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ मीन्स कम हो रहा है। नीचे आएंगे दोनों पोल्स पे, यहाँ पर बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, देन ऊपर आते आते ये डिस्टेंस बहुत डिक्रीज़ हो गया। डिक्रीज़ मीन्स कम हो गया। ऐसे ही नीचे आते आते भी डिस्टेंस डिक्रीज़ हो गया। मेरिडियंस आर सेमी सर्कल। एग्जैक्टली, मेरिडियंस क्या है? एक सेमी सर्कल है। दे आर मार्क्ड इन ईस्ट और वेस्ट। बिल्कुल हमने इसको बोला, देखो जब सब में डिग्रीज में ईस्ट आ रहा है और उधर वाली में वेस्ट आ रहा है, सेम एज दैट दीज आर द ईस्ट एंड दीज आर द वेस्ट साइड, दीज आर द ईस्ट साइड। ओके, सो हम इसे ईस्ट और वेस्ट करते हैं। जैसे हमने अभी जब हमने लैटिट्यूड्स पढ़ी थी तो हम नॉर्थ एंड साउथ कर रहे थे। सी हमने जब लैटिट्यूड्स पढ़ी थी, सी ये नॉर्थ साइड, ये नॉर्थ साइड, ये साउथ साइड, ये साउथ साइड। सेम एज दैट यहाँ पर कैसा है? इसको हम ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करते हैं। 0 डिग्री मेरिडियन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। सो 0 डिग्री मेरिडियन इज कॉल्ड अ प्राइम मेरिडियन and it is passes through the Royal Observatory Greenwich नियर लंडन। और ये कहाँ से पास थ्रू हो रही लाइन? ग्रीनविच नियर लंडन। लंडन के पास एक जगह है ग्रीनविच, वहाँ से। द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज़ मेजर ईस्ट और वेस्ट प्राइम मेरिडियन। और यही एक मेन पॉइंट है जहाँ से हम ईस्ट और वेस्ट का पता लगाते हैं कि इस मेरिडियन से इधर वाले सारे ईस्ट वन, जिसे मैं कर्सर पॉइंट कर रही हूँ, एंड उधर वाले सारे वेस्ट। गॉट इट? So the next one, this is the questions you have to write in your notebook. ये एक extra question है and this is very very important question, that is difference between the parallels and meridians. ये बहुत important question है। question मैंने mark किया हुआ है। ये long question में आपके आ सकता है और बहुत अच्छा question है and you can do like same way. डिफरेंस बिटवीन द पैरेलल्स एंड मेरिडियंस आपको ऐसे ही अपनी नोटबुक में करना है। एंड उसके लिए क्या करना है? यू हैव टू टेक अ ड्राइंग पेज और एनी अदर पेज, कोई अलग से पेज लेंगे, उसको एक छोटे ग्रीटिंग कार्ड जैसा कट करेंगे। ड्रॉ द लाइन, डिवाइड इनटू इक्वल पोर्शन। ठीक है, वन साइड यू कैन राइट द पैरेलल और लैटिट्यूड्स, वन साइड यू कैन राइट द मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड। हैव यू गॉट माई पॉइंट? टेक अ शीट, कोई A4 साइज़ की शीट लिखो, उसे हाफ करो, उस हाफ में से भी उसको ग्रीटिंग कार्ड की तरह छोटे छोटे ग्रीटिंग्स बनाते हैं आप, उसकी तरह फोल्ड करो, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। लाइन ड्रॉ करेंगे बीच में, जैसे ये पोस्ट कार्ड बन जाएगा, जैसे आप ग्रीटिंग कार्ड देते हैं टीचर्स को। ठीक है, सो पैरेलल्स आर हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड दी मेरिडियंस आर वर्टिकल और सेमी सर्कल लाइंस। सो बेसिकली बेटा दिस इज़ द डिफरेंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस एंड मेरिडियन लाइंस। सो पैरेलल और लैटिट्यूड, पैरेलल लाइन कैसी है? हॉरिजॉन्टल, लेटी हुई, लैटिट्यूड, एंड द मेरिडियंस आर लॉन्गिट्यूड, खड़ी हुई, वर्टिकल लाइंस। पैरेलल रन टू ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, मैंने कैसे बताया था? वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जा रही हैं। सी दिस, दीज आर द पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस कैसी हैं? ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है, एंड देन लॉन्गिट्यूड्स आर रन फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। पैरेलल लाइंस कैसे? ईस्ट टू वेस्ट, ये नॉर्थ टू साउथ। टोटल नंबर ऑफ पैरेलल्स इज 181, ये आपको पता है 181, एंड 90 ईच इन सेमी सर्कल, एंड टोटल मेरिडियंस आर 360। 0 डिग्री लैटिट्यूड इज कॉल्ड इक्वेटर
अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो 0 डिग्री इज कॉल्ड अ इक्वेटर और अ ग्रेट सर्कल, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इट्स कॉल्ड ग्रीनविच और अ प्राइम मेरिडियन। ठीक है। नाउ अनदर वन, दे आर पैरेलल टू वन अनदर, यानी कि आपकी जो लैटिट्यूड्स हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। एंड दे आर नॉट पैरेलल, दे मीट एट द पोल्स, यानी कि लॉन्गिट्यूड पैरेलल्स नहीं है, ये एक दूसरे को आकर एक दूसरे से कट करती हैं। कहाँ पर? पोल्स पर। आइदर बी नॉर्थ पोल, आइदर बी साउथ पोल। लेंथ ऑफ अ लैटिट्यूड डिक्रीज एज मूव टूवर्ड्स द पोल। लेंथ कैसी? लेंथ जो है, अगर हम देखें इस पिक्चर में देखेंगे, सी इन दिस पिक्चर, सी लैटिट्यूड्स क्या है, जैसे ऊपर पोल्स की तरफ जाती है छोटी होती जाती हैं। ठीक है। लेंथ कैसी है इनकी? छोटी रहती है, यानी कि इक्वेटर पर सबसे बड़ी, जैसे ही नीचे जाएंगी जैसे ही ऊपर जाएंगी पोल्स के पास जाएंगी, इनकी लेंथ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। बट लॉन्गिट्यूड में ऐसा नहीं है, लॉन्गिट्यूड में लेंथ हमेशा सेम रहती है। ऑल द 360 लॉन्गिट्यूड सबकी लेंथ सेम रहती है। गॉट इट? So students, we can rest the today's class here only, and this is your homework, this one, this is your homework. You can write as a, you can make the flow chart like this in your notebook. आपको ऐसा ही flow chart अपनी notebook में भी बनाना है. So this is your homework, and which the picture I am leaving here, जो picture मैं आपको PDF में भेजूँगी वही picture आपने draw करनी है. Thank you so much students. Stay safe. Take care of yourself. Do your work on complete time and watch fully video. Thank you so much students.